Good morning, students. Today we will learn about goodwill, about goodwill's introduction, meaning of goodwill, factors affecting valuation of goodwill, necessity of goodwill valuation, methods of valuation of goodwill. आज हम इतना सीखेंगे. What is goodwill? स्टूडेंट्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गुडविल. इंट्रोडक्शन. In practical reconstruction of a partnership firm, as per the circumstances, assets and liabilities are revalued at the time of the reconstruction of a partnership. Reconstruction के टाइम पर assets and liabilities को revalued किया जाता है. Issue of valuation of goodwill is taken place with revaluation of assets and liabilities. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ गुडविल की भी वैल्यू फाइंड की जाती है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट गुडविल एंड इट्स सेवरल एस्पेक्ट्स. इस चैप्टर में हम गुडविल एंड उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. मीनिंग ऑफ गुडविल. In simple words, goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a firm in the market. Simple words में goodwill market में firm की reputation बताने वाली, दिखाई न देने वाली asset है. Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. In second way, जो फर्म उसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट करती है उस फर्म की गुडविल की वैल्यू ज्यादा होती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. Following are the factors that affect the valuation of goodwill. First, nature of business. Goodwill exists when a firm earns more profit than the expected profit. It earns profit due to a high value added product. It has more profit margin due to stable sales और it earns more profit due to some other reasons. जिस बिजनेस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है. सेकेंड, लोकेशन ऑफ बिजनेस. Often the profit earning capacity of the business depends upon the business location. If the business is centrally located or it is at a place having heavy customer traffic, then more profit earning can be seen in the business. The value of goodwill is high at such centrally located businesses. Thus, business location also affects the value of goodwill. It is a very important point. जहाँ कस्टमर्स ज़्यादा होंगे वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी. थर्ड, पीरियड ऑफ बिजनेस. Generally, older the firm, higher the reputation in the market. Because majority of the customers are familiar and they have very close and long-term relations with that particular business unit.
Consequently, the value of such business is bound to be high. Thus, the period of business also has an impact on the value of goodwill. जो बिजनेस ज्यादा ओल्ड होता है उसकी गुडविल की वैल्यू न्यू बिजनेस से ज्यादा होगी ही. फोर्थ, मार्केट सिचुएशन. The monopoly condition or limited competition enables the concerned firm earn to high profit. Therefore, the value of goodwill is high in such business. Thus, the value of goodwill also depends on the situation of the business in the market. मार्केट में मोनोपोली या कंपटीशन होगा तो गुडविल की वैल्यू कम होगी, और यदि मोनोपोली या कंपटीशन कम होगा या नहीं होगा तो गुडविल की वैल्यू हाई रहेगी. फिफ्थ, efficiency of managers. The efficient management of a business increases the productivity and decreases the cost of a firm. Due to it, profit increase which increase the value of goodwill. मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा और इफेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी. सिक्स्थ, अदर स्पेशल बेनिफिट्स. Goodwill exists when a company enjoys special benefits and the overall profitability increases. For example, if a company can acquire license, patent or trademark or earn more profit or has been earning more profit, it is valued of having higher goodwill. स्टूडेंट्स, यदि किसी फर्म के पास स्पेशल बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क etc होंगे तो ऐसे बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होगी एज वेल एज गुडविल की वैल्यू भी ज्यादा होगी. नेक्स्ट हेडिंग, नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन. गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है? Normally, the need for valuation of goodwill arises at the time of the sale of a business. Normally, goodwill का valuation business को sold करते समय किया जाता है. In the context of a company, the need for valuation of goodwill arises at the time of amalgamation and absorption. कंपनी के केस में एमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन के टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन होता है. अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अमालगमेशन मीन्स व्हाट एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट. देन अमालगमेशन मीन्स व्हेन टू डिफरेंट फर्म्स और कंपनीज combine with each other and form a new firm or company. Absorption means when a firm takes over other firm or company. In the context of a partnership firm, it may also arise in the following circumstances. पार्टनरशिप फर्म में भी फॉलोइंग कंडीशंस में गुडविल का वैल्यूएशन होता है. फर्स्ट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है. सेकेंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. जब न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है. थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. फोर्थ,
डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो पार्टनरशिप में से रिटायर हो जाता है ऑटोमेटिकली, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फिफ्थ, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी, जब पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट होती है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सिक्स्थ, अमालगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन होता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में हम इन मेथड्स से गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे। Generally, following methods are used for the valuation of a goodwill. First, average profit method. Second, weighted average profit method. Third, super profit method. Fourth, capitalization of profit method. अब नेक्स्ट स्लाइड से हम इनके स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पर 2 स्टेप में गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड स्टेप में फाइंड किया जाता है गुडविल की वैल्यू। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेस। सेकेंड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप में स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, वेयर वेटेड प्रॉफिट मीन्स वेटेड प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। Goodwill equals to weighted average profit multiplied by years of purchase. Third method, super profit method. Step 1, calculation of capital employed. Capital employed equals to total assets minus total liabilities. Step 2, calculation of expected profit. Expected profit equals to capital employed multiplied by expected rate of return. Step 3, calculation of average profit. So you can see here it can be calculated either average profit method or weighted average profit method. Students, यदि प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस तरह के वेरिएशन आपको अगर दिखाई देते हैं तो हम उसे सिंपली एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। और यदि धीरे धीरे बढ़ रहा है प्रॉफिट, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 90,000 हुआ, सेकेंड ईयर में 1 लाख हुआ, थर्ड ईयर में 1,10,000 हुआ, फोर्थ ईयर में 1,40,000 हुआ, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस एवरेज प्रॉफिट को और वहां पर एवरेज प्रॉफिट को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करेंगे। फोर्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। Super profit equals to average profit minus expected profit. Step 5, calculation of goodwill. Goodwill equals to super profit multiplied by years of purchase. Next method. Fourth, capitalization of profit method. Step 1, calculation of capital employed. Same way, capital employed equals to total assets minus total liabilities. Step 2, calculation of average profit. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मेथड में समझाया, it can be calculated either average profit method or weighted average profit method. Step 3, calculation of capitalized profit. Formula for capitalized profit equals to average profit divided by expected rate of return multiplied by 100. Step 4, calculation of goodwill. Goodwill equals to capitalized profit minus capital employed.
स्टूडेंट्स ये 4 मेथड्स हैं और इसी में आपको एक एडिशनल मेथड को भी समझना है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। 4 स्टेप्स सेम रहेंगे, खाली 5th जो स्टेप है वो चेंज होगा सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। Expected profit equals to capital employed multiplied by expected rate of return. Step 3 calculation of average profit. It can be calculated either average profit method or weighted average profit method. Step 4 calculation of super profit. Super profit equals to average profit minus expected profit. Step 5 calculation of goodwill. Students यहाँ पर goodwill का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। Goodwill equals to सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स इसी के साथ थियरी पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने आज यहाँ पर सीखा इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेसेसिटी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।